है। लेकिन युद्ध विराम की बातों को ट्रंप ने सीधे नकार दिया। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका के हमले में ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा। ट्रंप ने कहा कि ईरान की रिजीम खत्म हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा करते हुए कहा कि ईरान की नेवी खत्म हो चुकी है, ईरान की लीडरशिप का खात्मा किया जा चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के सारे बड़े नेता मारे जा चुके हैं। हमने ईरान के रिजीम को बदल दिया है, हमने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक दिया है। तो देखिए, ये अपने संबोधन के जरिए यहां पर कहा गया और अमेरिकी लोगों को भी एक तरीके से उस्काने की कोशिश उनकी ओर से यहां पर की गई, क्योंकि देखिए नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन में इसका असर पड़ेगा। I want to thank our allies in the Middle East, Israel, Saudi Arabia, Qatar, the UAE, Kuwait, and Bahrain. They've been great, and we will not let them get hurt or fail in any way, shape, or form. I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. Essentially, I did what no other president was willing to do. They made mistakes, and I am correcting them. Iran's strategy was so obvious. They wanted to produce as many missiles as possible, and they did, with the longest range possible, and they had some weapons that nobody believed they had. We just learned that out. We took them out. We took them all out so that no one would really dare stop them. And their race for a nuclear bomb, a nuclear weapon like nobody's ever seen before. They were right at the doorstep. For years, everyone has said that Iran cannot have nuclear weapons, but in the end, those are just words if you're not willing to take action when the time comes. Our objectives are very simple and clear. We are systematically dismantling the regime's ability to threaten America or project power outside of their borders. That means eliminating Iran's navy, which is now absolutely destroyed, hurting their air force and their missile program at levels never seen before, and annihilating their defense industrial base. We've done all of it. Their navy is gone, their air force is gone. Their missiles are just about used up or beaten. Remember, because of our drill baby drill program, America has plenty of gas. We have so much gas. Under my leadership, we are #1 producer of oil and gas on the planet, without even discussing the millions of barrels that we're getting from Venezuela. Because of the Trump administration's policies, we produce more oil and gas than Saudi Arabia and Russia combined. Think of that, Saudi Arabia and Russia combined. And that number will soon be substantially higher than that. There's no country like us anywhere in the world. Discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group is less radical and much more reasonable. Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. और देखिए, ईरान के राष्ट्रपति का अमेरिकियों के लिए एक संदेश भी यहां पर सामने आया, जहां पर पेजेशिकियान ने कहा कि अमेरिका के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को खतरे के रूप में पेश करना बिल्कुल गलत। अपनी रक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं, हमें अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है। देखिए, इसी का इंतजार यहां पर था कि ट्रंप के संबोधन के बाद क्या ईरान की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने आएगा। तो पेजेशिकियान ने ये साफ साफ कह दिया है कि अपनी रक्षा हमारी जिम्मेदारी है, हमारा अधिकार है। और इस बीच एक और बड़ी खबर ईरान से ही आ रही है, जहां पर इजरायल और यूएस बेस पर ईरान के कई हमले यहां पर सामने आए, जहां पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत आईआरजीसी का यह अटैक यहां पर देखने को मिला। इजरायल पर ड्रोन और रॉकेट से हमले किए गए हैं, मिसाइलों की बौछार की गई। पश्चिम एशिया में मौजूद यूएस बेस पर ईरान की स्ट्राइक सामने आई है और 80 से ज्यादा यूएस बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई है। ईरान के हमलों में इजरायल में भारी तबाही का दावा भी यहां पर किया गया है। देखिए, जिस तरीके के दावे यहां पर निकलकर सामने आ रहे थे कि इजरायल के पास उसका डिफेंस सिस्टम है, वो भी अब नाकाम एक तरीके से साबित हुआ नजर आ रहा है।
और देखिए, ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बमों की बौछार कर दी है। इस बमबारी से अलर्ट करने के लिए तेल अवीव में लगातार सायरन बज रहे हैं। वहीं इजराइल का यह दावा है कि उसने ईरान पर 10,000 ठिकानों पर हमले किए हैं, लेकिन हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर अमेरिका बहुत बेचैन है। USS Abraham Lincoln 3941, USS Gerald R. Ford 2552 और USS George H.W. Bush 9046। ट्रंप के तीनों कैरियर युद्ध में ईरान को बारूदी डोज दे रहे हैं। इजराइल ने भी ईरान पर मिसाइलों और जंगी जेटों से भयानक हमले कर रखे हैं, लेकिन ईरान जब जवाब दे रहा है तो सुपर पावर और इजराइल की हालत खराब हो रही है, क्योंकि ईरान सटीक मार मार रहा है। ईरान दुखती रगों को दबाता जा रहा है। ईरान उन कमजोर कड़ियों को तोड़ रहा है जिनसे युद्ध का रिजल्ट उसके हक में होता दिखने लगा है। खाड़ी में अमेरिका के सैन्य अड्डों को ईरान ने कब्रिस्तान बना डाला है। खाड़ी देशों में अमेरिका को मदद पहुंचा रहे देशों को ईरान जमकर पीट रहा है। ईरान के टारगेट पर अब अमेरिका की वो कंपनियां हैं जिनकी दौलत से ये युद्ध चल रहा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने ट्रंप को फाइनेंस करने के आरोप लगाकर 18 मल्टीनेशनल कंपनियों की बुनियाद हिलाने की धमकी दे डाली है। सिस्को, HP, इंटेल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा, IBM, डेल, वॉलेंटिन, एनवीडिया, JP मॉर्गन, टेस्ला, जनरल इलेक्ट्रिक, स्पायर सॉल्यूशंस, G42 और बोइंग इनमें शामिल हैं। ईरान ने हाईटेक युद्ध शुरू कर दिया है। बारूदी हथियारों के साथ साइबर वॉर में अब इजराइल अमेरिका को ईरान की डिजिटल आर्मी से लोहा लेना पड़ेगा। लेकिन ट्रंप ने युद्ध के सबसे भयानक दौर में नेतन्याहू को झकझोर देने वाला झटका दिया है। ट्रंप ने ऐलान किया है वो ईरान युद्ध से 3 हफ्तों के अंदर बाहर निकल लेंगे। इसके बाद जंग की जिन्हें जरूरत है वो देश ईरान से निपटे। I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. ईरान युद्ध का कंट्रोल ट्रंप के हाथ से फिसलने लगा है, इतनी तेजी से कि वो खुद अपनी कही बातों पर टिक नहीं पा रहे हैं। जो दावे उन्होंने किए हैं वो सब बेमानी होते जा रहे हैं। युद्ध की शुरुआत में ही ट्रंप ने दावा किया था कि 3 से 4 हफ्तों में वो ईरान में तख्ता पलट कर देंगे। ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका ईरान के सभी हथियारों को बर्बाद कर डालेगा, लेकिन युद्ध दूसरे महीने में है, पहले से कहीं ज्यादा विस्फोटक है। भीषण युद्ध के बीच ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट को तेज रफ्तार दी है। ईरान ने एतमाद मिसाइलों का सफल ट्रायल किया है। एतमाद मिसाइलों को डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर सटीक हमलों के लिए जाना जाता है। एतमाद मिसाइलें डिफेंस सिस्टम के 3 इंटरसेप्ट्स चकमा देकर सटीक हमला करती हैं। ईरान ने स्ट्रेटेजिक जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन और उन्हें अपग्रेड करना शुरू किया है। IRGC के एरोस्पेस ऑपरेशन के फुटेज से एतमाद मिसाइलों की जानकारी मिली है। मतलब यह है कि ईरान के मिसाइल गोदाम खाली नहीं हुए हैं। ईरान में इस्लामिक कट्टर सरकार बरकरार है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई युद्ध में जीत की गारंटी दे रहे हैं। रेवोल्यूशनरी रॉकेट फोर्स ने दावा किया है कि 12 घंटों के भीतर 100 बड़ी मिसाइलों, 500 से ज्यादा अटैक ड्रोन और 200 से ज्यादा रॉकेट से दुश्मनों को दहलाया गया है, जिसमें बहरीन में US सेना के बेस
और कुवैत में अल अदीरी बेस पर यूएस हेलीकॉप्टर यूनिट को ड्रोन बमों से उड़ा दिया गया है। ईरान ने सबसे ज्यादा तबाही इजराइल में मचा रखी है, जहां उसे हिजबुल्लाह और हूती से पूरा समर्थन मिल रहा है। युद्ध में साथ दे रहे हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम की ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने जमकर तारीफ की है, क्योंकि हिजबुल्लाह लड़ाकों ने गजब इजराइल के हथियार गोदाम को रॉकेट के हमलों से जला डाला है। ईरान के तूफानी हमलों के बाद इजराइल युद्ध में नए अलायंस की कोशिशें तेज कर रहा है। पीएम नेतन्याहू ने पहले ही बता रखा है कि वो अमेरिका के साथ ईरान के उन दुश्मनों का गठबंधन बनाएगा जो युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार है। לא רק שחיזקנו את הברית עם ארצות הברית, אנחנו גם יוצרים בריתות חדשות עם מדינות חשובות באזור נגד האיום האיראני המשותף, ואני מקווה שבקרוב, אזרחי ישראל, אני אוכל לספר לכם יותר על הבריתות החשובות האלה. ईरान को अमेरिका इजराइल ने मिलकर युद्ध में उलझाया, फिर खाड़ी देशों ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोला। इतने पर भी जब ट्रंप को जीत का भरोसा नहीं हुआ तो उन्होंने नेटो फोर्स को ईरान युद्ध में आने के लिए उकसाया। यूरोप के देशों को भी अमेरिका ने दोस्ती का हवाला दिया, लेकिन यूरोप के देश खुद को इस आग में झोंकने को तैयार नहीं। ब्रिटेन जैसे अमेरिका के कट्टर समर्थक देश ने भी ट्रंप को मायूस कर दिया है। The conflict in the Middle East has now entered a second month, and while we're working at pace for de-escalation and peace, it is now clear that the impact of this war will affect the future of our country. So today I want to reassure the British people that no matter how fierce this storm, we are well placed to weather it, and that we have a long-term plan to emerge from it a stronger and more secure nation. ट्रंप नेटो पर भड़के हुए हैं। ट्रंप यूरोप से नाराज है, लेकिन वो नेटो समिट में शामिल हुए हैं। उन्होंने आर्टिकल 5 पर कमिटमेंट भी कर दिया है। With it, that's why I'm here. If I didn't stand with it, I wouldn't be here. So you would defend countries even Well, if what they did don't I pay just up say? their fair Yes, share? of course. Why would I be here? ट्रंप कभी गर्म तो कभी नर्म रुख अपना रहे हैं, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की गर्दन फंस गई है। भौगोलिक तौर पर हॉर्मुज ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के बीच का एक जल डमरू मध्य है। ये रास्ता काफी संकरा और उथला है, जहां पानी के नीचे तक जाकर ऑपरेशन करना मुमकिन नहीं है। हॉर्मुज का भूगोल ईरान के पक्ष में, यहाँ पर अगर अमेरिकी सैनिक उतरते हैं तो उन्हें युद्ध लड़ना होगा, जो काफी मुश्किल है। इसमें हताहत होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। रास्ते के संकरा होने से यहाँ युद्धपोत ले जाना मुश्किल है। एक मामूली ड्रोन भी युद्धपोत को तबाह कर सकता है। इससे अमेरिका की पूरी दुनिया में किरकिरी होगी। अमेरिकी सैनिकों के लिए लैंड करना मुश्किल है। जैसे ही सैनिक लैंड करेंगे, वैसे ही मारे जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ऑपरेशन की शुरुआत में ही अमेरिका की भद पिट सकती है। यह भी गारंटी नहीं है कि हॉर्मुज पर कंट्रोल से ईरान की सरकार झुक जाएगी। कब तक वहां जंग लड़ेंगे? हॉर्मुज अगर ब्लॉक भी होता है तो इसका नुकसान अमेरिका को कम होगा, क्योंकि वो इस रास्ते से ज्यादा व्यापार नहीं करते हैं। हॉर्मुज में मिलिट्री ऑपरेशन से दूर रहने की वार्निंग ट्रंप को किसी और ने नहीं, जनरल डैन कैन ने दी है। जनरल डैन कैन अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार हैं। उनकी पोस्ट जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की है। जनरल डैन कैन 4 स्टार जनरल है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जनरल केन ने ट्रंप को समझाया कि यहां ताकत से कब्जा नहीं किया जा सकता है। ईरान ने हॉर्मुज में जबरदस्त वॉर प्लान बना रखा है। ईरानी सेना चालाकी से अपने सैनिकों को तैनात करके रखी है, जहां ईरान की एक छोटी बारूदी बोट अमेरिकी युद्धपोत को बर्बाद कर सकती है। जिन्होंने 3 राउंड की मीटिंग में ट्रंप को हॉर्मुज में ऑपरेशन के साइड इफेक्ट समझाए हैं। जनरल डेन ने शुरुआत में ही ईरान से युद्ध न करने की सलाह दी थी, लेकिन तब ट्रंप ने पीट हेक्सन और स्टीव विटकॉफ की बातों को तवज्जो दी, जिसके नतीजे में अमेरिका युद्ध में भारी नुकसान झेल रहा है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जनरल की बातों पर गौर करना शुरू कर दिया है। ट्रंप के दांव चल नहीं रहे। युद्ध का बढ़ता प्रेशर उन्हें बेचैन कर रहा है। लेकिन इजराइल ये युद्ध तब तक खत्म नहीं करने वाला जब तक ईरान घुटने पर नहीं आता। नेतन्याहू ने युद्ध से अमेरिका के जाने के बाद की तैयारी शुरू कर दी है। ट्रंप के लिए अब ईरान युद्ध आगे कुआं पीछे खाई जैसा साबित हो सकता है, क्योंकि रूस ने खाड़ी युद्ध में दखल दे दिया है। पुतिन ने ट्रंप पर एटमी युद्ध भड़काने के आरोप लगाए हैं। इस आरोप को अमेरिका नजरअंदाज नहीं कर सकता। वजह रूस अमेरिका की जानी दुश्मनी है।
और देखिए एक बड़ी खबर भी इस बीच आ रही, जहां पर यूएस सीनेटर क्रिस वैन होलेन का ट्रंप पर बड़ा आरोप यहां पर सामने आया, जहां पर वो कहते हैं कि ट्रंप ने हमेशा की तरह झूठ बोला। 2 हफ्ते पहले ट्रंप ने जीत का दावा किया, जीत गए थे, तो अब भी वहां पर क्या कर रहे हैं, ये उनसे सवाल पूछा गया। और आगे क्या होने वाला है किसी को कुछ पता नहीं है, ये सवाल उनकी ओर से यहां पर उठाए गए हैं। और आप देखिए यूएस सीनेटर भी ये है, इसके अलावा भी कई सारे बयान इससे पहले भी ट्रंप के आपने यहां पर सुने थे, लेकिन अभी यूएस सीनेटर खुद ही उनसे यहां पर सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप जीत गए तो वहां पर क्या कर रहे हैं। और देखिए ईरान ने ट्रंप के ग्राउंड ऑपरेशन को फेल करने के लिए एक ऐसी रणनीति तैयार की है जिसका शिकार डोनाल्ड ट्रंप के 2 बहुत खास दोस्त बन सकते हैं, और फिर तीसरा नंबर सऊदी अरब का आ सकता है। आसमान में तेजी से उभरती हुई रोशनी, ये कोई तारा नहीं, मिसाइल है। और फिर ये जॉर्डन का वो मिलिट्री बेस है जहां से अमेरिका की सेना ऑपरेट करती है। एक बार फिर देखिए ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने कैसे तोड़ डाला अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का गुरूर। लेकिन ईरान कैसे तोड़ने जा रहा है ट्रंप के ग्राउंड ऑपरेशन वाला चक्रव्यूह? ट्रंप के चक्रव्यूह में कौन फंसेगा और फंसाएगा, और काउंटर अटैक में क्या होने जा रहा है? ट्रंप के चक्रव्यूह में क्या ईरान घुटने टेकेगा या फिर ट्रंप की होगी करारी हार? ईरान में तख्ता पलट करने वाला इरादा अब हॉर्मूज की जकड़ खत्म करने का मकसद बन चुका है। 24 घंटे में युद्ध बहुत बदल गया है। ट्रंप और नेतन्याहू के चक्रव्यूह में क्या अब खुद अमेरिका और इजराइल फंसता हुआ नजर आ रहा है? लड़ाकू जहाज, जंगी बेड़े, बंकर बस्टर बम दिखाकर ट्रंप ईरान का नक्शा बदलना चाहते थे, लेकिन 1 महीने की जंग के बाद ईरान ने पश्चिम एशिया का मैप बदलने का इरादा कर लिया है। ईरान के इशारे पर 2 ऐसे बड़े फैसले हुए हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसका देंगे। ट्रंप की सुपर पावर अब बहुत निर्णायक हालात में जूझती हुई नजर आ सकती है। इसकी 2 बहुत बड़ी वजह हैं। अमेरिका ने अगर ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन किया, मरीन फोर्स को ईरान की जमीन पर उतारा, या फिर सीरिया से लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले किए गए, तो ट्रंप के 2 दोस्तों की जान खतरे में पड़ जाएगी। यह है इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया, जिन्हें दुनिया पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के नाम से जानती है। उसने अमेरिका के 2 दोस्तों को रौंदने का इरादा कर लिया है। पीएमएफ ने कहा है कि अगर ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ तो वो कुवैत का बॉर्डर तोड़ डालेंगे। पीएमएफ ने कहा कि अगर लेबनान में हिजबुल्लाह पर सीरिया की तरफ से हमला हुआ तो वो सीरिया का बॉर्डर भी तोड़ डालेंगे। इसे ही ईरान का बॉर्डर तोड़ युद्ध कहा जा रहा है, जो अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन के खिलाफ रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक लड़ाई होगी। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर सरकार ने कई केमिकल आयात पर कस्टम ड्यूटी 0 कर दी है। 40 केमिकल प्लास्टिक के कच्चे माल पर ड्यूटी यहां पर 0 कर दी गई है। कस्टम ड्यूटी 0 होने से पीवीसी, मेथनॉल सस्ते हो जाएंगे। अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी समेत सेस भी अब 0 कर दिया गया है। इसके अलावा पश्चिम एशिया के जंग के बीच सरकार की ओर से बड़ी राहत यहां पर दी गई है। तो देखिए व्यापारियों को इससे सीधा असर भी यहां पर पड़ेगा। सरकार ने ये फैसला यहां पर जो किया है, कई सारे केमिकल आयात पर कस्टम ड्यूटी 0 कर दी गई, जिसमें 40 केमिकल शामिल हैं। इसके अलावा प्लास्टिक के कच्चे माल पर भी ड्यूटी 0 कर दी गई है।
तो देखिए, ट्रंप के बयान के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट भी यहां पर देखी गई, जहां पर सेंसेक्स में 1400 अंकों की भारी गिरावट यहां पर दर्ज की गई है। निफ्टी भी 400 से ज्यादा अंक के साथ यहां पर गिरा। देखिए, जब उनकी ओर से बयान दिया गया है, कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन पूरे शेयर मार्केट में यहां पर देखने को मिला और अभी भारी गिरावट दर्ज की गई है शेयर मार्केट में, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया कि जंग अब भी लगातार जारी है। 2 से 3 हफ्ते में हम और ज्यादा पुष्ट तरीके से यहां पर रिटेलिएट कर सकते हैं, यानी कि जंग अभी खत्म नहीं होगी। ये सीधा संकेत उनकी ओर से यहां पर साफ साफ दिया गया है, जिसके बाद सेंसेक्स में 1400 अंकों की भारी गिरावट यहां पर देखी गई और निफ्टी भी 400 से ज्यादा अंक यहां पर गिरा। देखिए, लगातार जिसके कयास यहां पर लगाए जा रहे थे कि ट्रंप हो सकता है ऐसी कोई घोषणा कर दे कि ये जंग रुक जाए, ऐसा बिल्कुल होता हुआ नहीं दिख रहा। और उस बीच डॉलर के मुकाबले ₹1.30 मजबूत रूप में यहां पर खुला। देखिए, रुपया यहां पर खुला है, जहां पर रुपया ₹94.83 प्रति डॉलर के मुकाबले यहां पर खुला है और आप देखिए मजबूती यहां पर कहीं ना कहीं रुपए में देखने को मिली है। हालांकि ट्रंप का मकसद हमेशा से रहा है कि उनका जो डॉलर है वो बेहद मजबूत यहां पर हो, इसीलिए वो तमाम देशों से कह रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता है तो आप हमसे तेल ले सकते हैं, क्योंकि अगर वो देश उनसे तेल लेंगे तो डॉलर का फ्लो यहां पर बढ़ेगा और यही चाहते हैं ट्रंप कहीं ना कहीं। और इसी वजह से लगातार उनकी ओर से ये तमाम बातें यहां पर कही जा रही हैं। और एक बात तो यहां पर ये भी सामने आई थी कि ट्रंप ये कह रहे थे उनको फर्क नहीं पड़ता अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे वक्त तक बंद रहे। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब एक और बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में बदलने की तरफ यहां पर बढ़ती दिख रही है। इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी कि पीएमएफ ने साफ चेतावनी दी है कि अगर लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमला हुआ तो वो सीरिया की सीमा तोड़कर जंग में कूद पड़ेंगे। पीएमएफ की ताकत क्या है? क्या इराक का मिलिशिया अमेरिका के 2 बहुत खास साथी देशों पर हमला कर सकता है? इसे समझने से पहले पश्चिम एशिया के इस इलाके को समझिए और पीएमएफ की वार्निंग की जमीनी पिक्चर को जरा समझिए। ईरान के साथ पश्चिम में इराक का बॉर्डर है और इराक के साथ दक्षिण में कुवैत का बॉर्डर। इराक ईरान का मित्र देश है, जबकि कुवैत ईरान का दुश्मन है। इराक में मौजूद पीएमएफ ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान में अपनी सेना उतारी तो वो कुवैत को रौंद डालेंगे, यानी कुवैत के खिलाफ शुरू होगा ईरान का बॉर्डर तोड़ युद्ध। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या पीएमएफ के पास इतनी ताकत है कि उसकी वार्निंग को अमेरिका बहुत गंभीरता से ले? तो सच ये है कि पीएमएफ ने इराक से आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन का खात्मा किया है। इसी फोर्स ने मोसुल में बगदादी के गढ़ को मिटा डाला था। यही वजह है कि पीएमएफ की सिर्फ कुवैत वाली वार्निंग ही नहीं, बल्कि सीरिया वाले अलर्ट पर भी ट्रंप को संजीदा होना पड़ेगा। इराक में पीएमएफ यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स ने सीरिया को भी अलर्ट कर दिया है। सीरिया में अहमद अल शरा यानी अल जुलानी की हुकूमत है और सीरिया से अगर लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमला हुआ तो पीएमएफ के लड़ाके सीरिया बॉर्डर तोड़कर अंदर घुस जाएंगे, यानी कुवैत के साथ साथ सीरिया में भी शुरू हो जाएगा बॉर्डर तोड़ युद्ध। सीरिया का बॉस यानी अहमद अल शरा, जिसे दुनिया अल जुलानी के नाम से भी जानती है, ये शख्स डोनाल्ड ट्रंप का जिगरी दोस्त बन चुका है। ट्रंप अमेरिका में जुलानी को दावत दे चुके हैं और व्हाइट हाउस में जुलानी की तारीफ में कसीदे पढ़ चुके हैं, जबकि सच ये है कि जुलानी आईएसआईएस और अल कायदा का सरगना रह चुका है और अमेरिका ने उसके ऊपर $10 मिलियन का इनाम भी रखा था। लेकिन सीरिया में बशर अल असद सरकार का तख्ता पलट करने के बाद अब जुलानी ही वहां का चीफ है। ما لم تتعرض سوريا إلى استهدافات مباشرة من أي جهة فهي ستبقى خارج هذا الصراع. يكفي سوريا 14 سنة من الحرب دفعنا خلالها فاتورة كبيرة جدا، فنحن لسنا مستعدين أن نخوض أيضا تجربة جديدة. من دخل غمار الحرب يعرف قيمة السلام. 2024 में जुलानी की ताजपोशी में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका और इजराइल का रहा है। यही वजह है कि अब ट्रंप और नेतन्याहू चाहते हैं कि लेबनान सीरिया का बॉर्डर नया फ्रंट बन जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? अमेरिका और इजराइल के रहमो करम पर सीरिया पर कब्जा करने वाले जुलानी का दावा है कि वो युद्ध में शामिल नहीं होगा, लेकिन अगर सीरिया पर मुसीबत आई तो ये एक विकल्प
चुनना पड़ेगा। فليس هناك أحد مستعد لأن يخوض غمار الحرب إلا إذا اعتدي علينا بشكل كبير وواضح وفقدنا كل الحلول الدبلوماسية. सीरिया और कुवैत को कुचलने की ताकत इराक के मिलिशिया पीएमएफ में है और यह बात डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसे इराक का हिजबुल्लाह कहा जाता है और यह ताकत के मामले में लेबनान के हिजबुल्लाह से बड़ी ताकत साबित होगा। यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 2014 में बनाई गई पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स में 2 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं। यह फोर्स इराक की सेना का हिस्सा है और इराक के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। लेकिन दूसरा सच यह है कि इस फोर्स को पूरी तरह ईरान कंट्रोल करता है। हथियार भी ईरान देता है, ट्रेनिंग भी ईरान देता है और लड़ाई का ऑर्डर भी ईरान से ही आता है। पीएमएफ ईरान के सुप्रीम लीडर यानी मुस्तफा खामनेई को अपना लीडर मानते हैं। इसी फोर्स ने इराक से आईएसआईएस का सफाया किया था। अगर ये 2 लाख लड़ाकों की फौज कुवैत और सीरिया की तरफ बढ़ी तो समझ लीजिए कि ईरान युद्ध एक इलाकाई युद्ध में तब्दील हो जाएगा और फिर ग्राउंड ऑपरेशन के काउंटर अटैक की जद में अमेरिका के साथी देश भी जाएंगे। ईरान के मिसाइल हमले का एक नया वीडियो देखिए। यहां अमेरिकी सैनिक ईरान के मिसाइल अटैक को रिकॉर्ड कर रहा था। ऐसे ही हमले बता रहे हैं कि पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिकी अड्डे सुरक्षित नहीं हैं। इराक के इरबिल में अमेरिकी कंपनी के एक ठिकाने पर ईरान का शाहिद ड्रोन टूट पड़ता है। ऐसे हमलों को रोकने में डोनाल्ड ट्रंप नाकाम साबित हो रहे हैं। यह है इरबिल में वो जगह जो ईरान के टारगेट पर लंबे वक्त से रही है और अब यहां भी ईरान ने बड़ा हमला बोला है। कुल मिलाकर अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन बहुत बड़ी चुनौती लाने जा रहा है। तो आगे का रास्ता क्या है? हॉर्मुज में घिर चुके ट्रंप ईरान को तोड़ने के लिए हर कोशिश में जुटे हुए हैं। उनकी सेना ईरान के करीब पहुंच चुकी है। यूरोप के रास्ते नए बॉम्बर विमान भी पश्चिम एशिया की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रंप का ग्राउंड ऑपरेशन वाला इरादा मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन इस ऑपरेशन की शुरुआत होने के बाद क्या होगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। वहीं ब्रिटेन की वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल का दावा है कि ईरान में तख्ता पलट हो चुका है और अब हुकूमत आईआरजीसी के हाथों में है, क्योंकि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी अब मुस्तफा खामनेई से नहीं मिल पा रहे हैं। कहने का मतलब आईआरजीसी ने मुस्तफा खामनेई की सरकार पर कब्जा कर लिया है, इसीलिए वो सामने नहीं आ रहे। लेकिन एक रिपोर्ट ये भी है कि ईरान इंटरनेशनल के सिर्फ नाम से ईरान है, जबकि ये ब्रिटेन की वेबसाइट है और ये सऊदी अरब के फंड से चलती है। अगले 24 घंटे इस युद्ध में बहुत अहम होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी फैसला इस जंग को या तो खत्म कर देगा या फिर इस लेवल पर भड़का देगा जहां से वापसी की उम्मीद कम होती चली जाएगी। पूरी दुनिया के लिए ये बहुत मुश्किल वक्त है। और देखिए इधर अमेरिका ने ईरान के इस्फहान पर जोरदार अटैक किए हैं। इस्फहान में ईरान का मिलिट्री और न्यूक्लियर एरिया मौजूद है, जहां पर धमाके की खबर इस वक्त मिल रही है और हमला बंकर बस्टर बम से यहां पर किया गया है, उसकी आशंका है। इसमें कई सैन्य ठिकानों को नुकसान होने की खबर भी इस वक्त मिल रही है। आप देखिए किस तरीके से बड़ा धुएं का गुबार उठता हुआ देखा, एक बड़ा विस्फोट यहां पर हुआ है और बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल शायद यहां पर किया गया है। ईरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस्फहान वही क्षेत्र जहां पर बंकर के अंदर कई न्यूक्लियर ठिकाने हैं। तो तस्वीर आप यहां पर देखिए किस तरीके से बड़ा ब्लास्ट यहां पर किया गया और अभी अनुमान यह है कि हो सकता है बंकर बस्टर बम यहां पर गिराए गए हों। और पहाड़ी क्षेत्र आप यहां पर देख भी रहे हैं, कहा जाता है कि बकायदा पूरी एक सिटी बसा रखी है। बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा जहां पर रखा हुआ है वो भी पहाड़ों के
नीचे दबाकर यहां पर बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइलें ईरान ने रख रखी हैं और इसीलिए बार बार अमेरिका ऐसे क्षेत्रों पर हमला कर रहा है जहां पर उसको थोड़ा अनुमान है कि